Hello students, welcome to my channel. In this lecture we will discuss a very important chapter of class 11th, which is dimensional analysis. So firstly we will start with a very simple definition which is called as dimensional formula. Dimensional formula. So what is the meaning of dimensional formula of a physical quantity? It is an expression. It is an expression which shows that which of the fundamental units enters into derived unit of that physical quantity with what powers? So what is the meaning for this? The dimensional formula of a physical quantity is an expression. This is an expression which shows that which of the fundamental units are present कहाँ पे in the derived unit of the physical quantity और उसमें उसकी powers कितनी है. ठीक है. For example, suppose we have velocity. So what is the velocity? Velocity is displacement over time. So we know that displacement is a kind of length and divided by time. Clear? So we know that we have three fundamental quantities: mass, length and time. Clear? But in case of velocity, only length and time are present, but mass is absent. Clear? And in the velocity, the power of length is 1 and the power of time is 1. Clear? So it means that dimensional formula of velocity is, so now what we have to write down here. So in case of length, we will write down capital L. In place of time, we will write down capital T. But if mass is not present, we will write down its power is 0. Clear? So we will write down m0 because mass is absent, and L is present, its power is 1, and third -1 because बच्चों t हमारा कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है. अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की टाइम की पावर क्या बन जाएगी? -1. तो हमने इसको लिख दिया मास m⁻0 बिकॉज मास हमारा इसमें नहीं आ रहा, मास एब्सेंट है. L⁻1 बिकॉज इसकी पावर 1 है और t⁻1. क्लियर? सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. सो इस तरह से हम ऑलमोस्ट 30 to 40 फार्मूलाज पढ़ेंगे जो आपको इस चैप्टर के लिए ज़रूरी हैं. तो आप देखना सारे फार्मूलाज हम कैसे सीखने हैं, तो आप साथ के साथ नोट भी करते जाओ और इनको आप याद भी करना, लिख के याद करना तो इजीली याद हो जाएंगे. ठीक है. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल. फर्स्ट इज मास. ठीक है. मास हमारा फंडामेंटल सिस्टम है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. सो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ? m1 L0 T0 बिकॉज इसमें सिर्फ मास है. ठीक है. L and T आर एब्सेंट. इन केस ऑफ लेंथ, its dimensional formula is m0 L T0. Clear? Third one is time. Its dimensional formula is m0 L0 T1. Clear? So now next is velocity. Velocity का हमने अभी देख लिया क्या है हमारा? m0 L T-1. Clear? और नेक्स्ट अगर आप स्पीड भी बोलोगे, स्पीड इज व्हाट? देयर इज a very simple difference. Velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity. ये क्या होती है हमारी? displacement by time, this is distance by time. तो इसका dimensional formula भी वही होगा जो velocity का है. So this is m0 L T-1. Clear? Now next is acceleration.
एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? स्पीड ओवर टाइम या वेलोसिटी ओवर टाइम। सो दिस इज स्पीड ओवर टाइम। स्पीड का क्या है बच्चों? m0 l t माइनस 1। टाइम का नीचे टाइम आ गया तो इसका क्या बन गया? m0 l t माइनस 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? दिस इज m0 l t माइनस 2। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स बच्चों क्या है हमारी? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा क्या है? सिर्फ m, और एक्सेलरेशन हमारी क्या है बच्चों? m0 l t माइनस 2। क्लियर? तो इसको अगर मैं पहले सिर्फ एक्सेलरेशन का लिखूं तो दिस इज l t माइनस 2। तो ये क्या बन गया हमारा? m l t माइनस 2, m l t माइनस 2। क्लियर? तो फोर्स का हमारा क्या बन गया? m l t माइनस 2। Clear? So now next is what? Next is linear momentum. लीनियर मोमेंटम क्या होती है हमारी बच्चों? देखो इसको बोलते हैं p। दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। मास का हमारा सिर्फ m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, तो इसका क्या बना? mlt माइनस 1। सो दिस इज mlt माइनस 1। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क और एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सभी एनर्जीज के डायमेंशंस वर्क वाले ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। नाउ व्हाट इज वर्क? दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर? फोर्स के हमारे पास अभी हमने बोला है फोर्स इज व्हाट? mlt माइनस 2, mlt माइनस 2। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज l। तो ये क्या बन गया बच्चों? ml2t माइनस 2। तो वर्क हमारा क्या बना? ml2t माइनस 2। ठीक है, एनर्जी के डायमेंशंस भी वही हैं जो वर्क की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम काइनेटिक एनर्जी देख लें। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ के तो डायमेंशंस नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट। सो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मास? मास इज m, velocity lt minus 1 raised by 2. So this is what? ml2t minus 2. Clear? So all the energies will have the dimensional formula ml2t minus 2. ठीक है? So now next is what? Next is power. पावर बच्चों क्या होती है? एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी हमारी क्या है? ml2t minus 2 डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या बन गया? ml2, एक पावर नेगेटिव और आ जाएगी टाइम की, तो दिस इज ml2t minus 3. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ml2t minus 3. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज एंगल। तो ये ऑलमोस्ट हम अराउंड 30 to 40 पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपको जो +1 +2 के लिए सिंपल फार्मूला आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल? एंगल इज व्हाट? सपोज दिस इज अ सर्कल, दिस इज थीटा, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज रेडियस। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज l by r. l is what? Length of the arc. This is a kind of distance. रेडियस वो भी एक काइंड ऑफ डिस्टेंस है। सो दिस इज l by l। तो इसका डायमेंशन क्या बना? m0 l0 t0। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? सो नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो नाउ हमारी जैसे ये वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो नाउ दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होगी? एंगल बाय टाइम। सो दिस इज, यहाँ पे हम रफली कर लेते हैं एंगल बाय टाइम। ठीक है, तो मैं साथ में इसके ना आपको जो सिंबल्स हैं वो भी बताता जाता हूँ। मास का सिंबल बच्चों हमारा m, लेंथ का l, t, वेलोसिटी v, इसको भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन e, फोर्स कैपिटल F, दिस इज स्मॉल p, दिस इज W और कैपिटल E, दिस इज कैपिटल P, दिस इज थीटा। क्लियर? और एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या है? ओमेगा। ठीक है, दिस इज एंगल बाय टाइम। एंगल बाय टाइम मतलब एंगल का तो डायमेंशन फार्मूला है नहीं, टाइम का क्या हमारा t वो नीचे है, तो ये क्या बना? m0 l0 t minus 1।
क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों हमारा क्या है? दिस इज अल्फा. सो दिस इज व्हाट, ये लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी ओवर टाइम. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी मींस basically its formula is this one, d omega by dt. clear? Small change in angular velocity by small change in time. तो इसका फॉर्मूला बेटा एंगुलर वेलोसिटी विच इज m0 l0 t माइनस 1 और इसका क्या बना? सिर्फ t. तो ये क्या बना बच्चों? m0 l0 t माइनस 2. क्लियर? बस इसमें साथ में लेंथ आ जाता है और इसमें लेंथ नहीं है. सो उसी तरह से फार्मूला है हमारा. ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज टॉर्क. टॉर्क का बच्चों सिंबल है टॉ. ठीक है? सो दिस इज व्हाट? दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है बच्चों? एक चीज़ आपको बताता हूँ, इन सभी फार्मूलाज को याद करने के लिए आपको जो इनके सिंपल बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए. आप जैसे जैसे पढ़ोगे प्लस वन में आपको एक्सपीरियंस के साथ ये सभी याद होते जाएंगे. ठीक है? तो जैसे जैसे आपको फार्मूलाज याद होते जाएंगे डायमेंशनल फार्मूला भी आपको देखना बड़ी इजीली आपको सब आने लगेंगे. ठीक है? सो ना फोर्स का हमारे पास क्या है? ये देखो हमने लिखा है फोर्स का mlt-2 mlt-2 इंटू डिस्टेंस. बेटा लेंथ है तो ये क्या बन गया? ml2t-2. ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज ml2t-2. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? रोटेशनल मोशन में एक और टर्म आती है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है? ये हमारी क्या होती है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. ये आप पढ़ोगे प्लस वन में है एक चैप्टर. दिस इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. मतलब मास का कैपिटल एम, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर. टाइम नहीं है इसमें तो इसको बोल देंगे ml2t0. क्लियर? तो इस तरह से ये हमने कर ली है. ठीक है? और भी करते हैं हम लोग. और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे लिखते हैं m.I. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेस. ये आपको इलास्टिसिटी वाले चैप्टर्स में आएंगे. स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह. तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. क्लियर बच्चों? फोर्स का हमारे पास क्या है? mlt-2. ये हमने लिखा हुआ है. एरिया इज व्हाट? एल स्क्वायर. तो इसका बच्चों क्या बना हमारे पास? ml, एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा. दिस इज l-1 t-2. क्लियर? तो ये हमारा क्या है? l-1 t-2. ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर. प्रेशर के डायमेंशंस भी वही हैं जो हमारे स्ट्रेस वाले थे, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी वही है. प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स बाय एरिया. फोर्स बाय एरिया. स्ट्रेस भी क्या है हमारा? फोर्स बाय एरिया. तो इसके डायमेंशंस भी वही हैं ml-1 t-2. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज स्ट्रेन. इसका सिंबल बता दूं. इसका सिंबल है सिग्मा. इसका सिंबल है कैपिटल P. एक चीज़ ध्यान रखना है हमने, पावर का सिंबल भी कैपिटल P है और प्रेशर का सिंबल भी कैपिटल P है. ठीक है? वो डिपेंड करेगा, हमें फॉर्मुलेशंस में हमें आइडिया हो जाएगा कहाँ पे कैसे करना है. ठीक है? स्ट्रेन. स्ट्रेन हमारा क्या है बच्चों? दिस इज एप्सिलॉन. इट्स अ सिंबल इज एप्सिलॉन. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको बताऊंगा मैं इलास्टिसिटी के चैप्टर में, तो वैसे बता देता हूँ अभी. स्ट्रेन क्या होती है बच्चों? चेंज इन डायमेंशंस बाय ओरिजिनल डायमेंशंस. मतलब ये तीन प्रकार की होती है. स्ट्रेन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड इन द 3 डायमेंशन. अगर कोई चीज़ सपोज किसी चीज़ की लेंथ है, जैसे कोई एक हमारे पास रबर बैंड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है. ठीक है? अगर उसको हमने गर्म कर दिया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी. मतलब चेंज इन डायमेंशन मतलब लेंथ में हमारा इंक्रीमेंट आ रहा है. ठीक है? तो जिस तरह की फिजिकल क्वांटिटी ऊपर है उसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी नीचे है, और डिवाइड होगा तो इसका फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l0 t0. क्लियर? जैसे मैं आपको बताता हूँ, लीनियर
स्ट्रेन अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल। मैंने बोला चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन लेंथ ये भी क्या होगा, मीटर में होगा, और ओरिजिनल डायमेंशन ये भी मीटर में होगा। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, तो कोई यूनिट इसका नहीं है, मतलब डायमेंशन फार्मूला इसका नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एल का डायमेंशन फार्मूला है हमारा एल, और ओरिजिनल लेंथ का भी हमें क्या लिखना है, एल। तो ये कट जाएगा और दे विल हैव नो डायमेंशंस। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स modulus. This is capital Y. Its formula is stress by strain. क्या है बच्चों इसका फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस हमने देख लिया, दिस इज ml-1 t-2। स्ट्रेन का हमारे पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो इसका फॉर्मूला मतलब दिस वन, तो ml-1 t-2। क्लियर बच्चों? तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा आ गया, स्ट्रेस वाला ही आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव अ टर्म विच इज कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह की टर्म्स आएंगी, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, एनर्जी ग्रेडियंट हो गया, फोर्स ग्रेडियंट हो गया। अगर किसी भी टर्म में आपको साथ में ग्रेडियंट लगा है तो उसका मतलब क्या है, जैसे हमने ये बोला प्रेशर ग्रेडियंट, इसका मतलब है dP by dl मीन्स वेरिएशन ऑफ प्रेशर with the distance. Clear? Means variation of pressure means dP by dl. Clear? अगर आपको आगे जैसे ये velocity gradient आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेम ही, उसको बोला dP by dl, इसको बोलेंगे हम dV by dl, ठीक है। एनर्जी आ गया तो इसको बोलेंगे एनर्जी ग्रेडियंट को कैसे बोलेंगे, दिस इज dE बाई dl। क्लियर? तो सभी तरह के ग्रेडियंट्स क्या हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको किसके साथ डिवाइड कर देना है, हमें dl के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो ये हमारा इसका डायमेंशन फार्मूला फिर क्या बनेगा, देखो प्रेशर का हमारे पास क्या है ml-1 t-2 और दिस इज l, तो हमारा ये बन गया ml-2 t-2। क्लियर? सो नाउ अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट हम देखें, वेलोसिटी इज व्हाट lt-1 और नीचे एक l और आ गई, तो दिस इज व्हाट t-1। क्लियर? तो लिख देते हैं यहाँ पे, सो व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज व्हाट, इसमें सिर्फ t-1 है, मतलब m एंड l आर एब्सेंट, तो इनकी पावर्स क्या होगी बच्चों, 0, m0 l0 t-1। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी ग्रेडियंट। अब एनर्जी का बच्चों हमारे पास है ml2 t-2 डिवाइड बाय l, सो दिस इज व्हाट ml t-2। क्लियर? सो दिस इज ml t-2। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये करनी है। इसके बाद कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हमें अभी डिस्कस करनी है। जैसे हमारे पास एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, आपने सुना होगा g होता है, g इज व्हाट, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसके डायमेंशंस फार्मूला भी वही होगा जो एक्सेलरेशन का था। एक्सेलरेशन का अभी आप चेक करो कॉपी में क्या लिखा है, m0 l t-2। क्लियर? सो इट्स फार्मूला इज m0 l t-2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कैपिटल G। क्लियर? तो देखते हैं कैसे करना है। सो थोड़े से मैं आपको जो डायमेंशन फार्मूलाज बता रहा हूँ, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली फार्मूलाज बना सकते हो, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आपको मुश्किल लगेगा, बाद में आपको इजीली याद हो जाएंगे सभी। सो नाउ
ग्रेविटेशनल का फॉर्मुलेशन हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज G m1 m2 बाई आर स्क्र। तो G का अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या बनेगा, F आर स्क्र बाई m1 m2। ठीक है, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों mlt-2, r इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस मीन्स l स्क्र। ठीक है, जहाँ जहाँ डिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे l लगा देना है, जहाँ पे मास आ रहा है वहाँ पे m लगा देना है, जहाँ पे टाइम की टर्म आ रही है वहाँ पे t लगा देना है। ठीक है, और देखो m1 इज अ काइंड ऑफ मास, m लगा दिया, m2 दिस इज अगेन मास, सो यहाँ पे फिर हमने m लगा दिया। सो नाउ व्हाट इज दिस, g ऊपर एक पावर नीचे दो होगी तो ये ऊपर जाके एक माइनस हो जाएगी। ठीक है, एक l यहाँ पे, l स्क्वायर यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा l क्यू, और t की हमारी पावर कितनी है बच्चों, t-2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट m-1 l क्यू t-2। ठीक है, जो भी मल टर्म्स आ जाती हैं सॉल्व करके उनको स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख देना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, so now next is Planck's constant। ठीक है, so this is what, this is h। बच्चों आपने सुना होगा this relation E is equal to h nu, energy of the radiation। ठीक है, energy of the photon। so h का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, E by nu। अभी मैंने nu का बताया नहीं, nu is what, यहाँ पे बता देता हूँ, nu is what, it is a frequency। क्लियर, फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी इज 1 by टाइम पीरियड। 1 by टाइम पीरियड मीन्स 1 by टाइम, तो इट्स फॉर्मुलेशन इज m0 l0 t-1। तो ये भी आप लिख लो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मुलेशन क्या बन गया, m0 l0 t-1। क्लियर, तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। एनर्जी बच्चों हमारी क्या है, ml2 t-2 डिवाइडेड बाई t-1। तो h के फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, ml2 t ऊपर चला गया तो दिस इज -1। क्लियर, सो दिस इज व्हाट ml2 t-1। ठीक है बच्चों, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी से एक टर्म हमारे पास और आ गई, आपको याद होगा, सो दैट इज वेवलेंथ। इसका सिंबल बच्चों क्या है, लैम्डा। इसका रिलेशन भी हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। सो वी नो दैट c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। व्हाट इज c, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, पढ़ा हमने ना, c इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बच्चों क्या है डायमेंशंस, सो लैम्डा एक तरफ ले जाते हैं, सो दिस इज c बाई न्यू। वेलोसिटी इज व्हाट, lt-1। न्यू इज व्हाट, अभी हमने लिखा है न्यू इज व्हाट, t-1। ठीक है, तो इस तरफ ये बच गया, l बच गया, तो इसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मास नहीं है मीन्स m⁻0 l पावर 1 t पावर 0। ठीक है, एक चीज़ आपको और बताना है, अगर जैसे l की पावर यहाँ पे 1 है तो आप चाहे लिखना है लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखा तो इसका मतलब l की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास रैडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, दिस इज कैपिटल R। सो इसके डायमेंशंस बच्चों दिस इज 1 by लैम्डा, इसके डायमेंशंस होते हैं 1 by लैम्डा। 1 by लैम्डा मतलब अभी हमने लैम्डा देखा है, दिस इज काइंड ऑफ लेंथ, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, m0 l-1 t raised power 0। इट इज m0 l-1 t power 0। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर। आपने सुना होगा मूल कॉन्सेप्ट में एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। क्लियर, सो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, दिस इज जस्ट अ नंबर विच इज 6.023 × 10⁻23। ठीक है, जैसे 1 मोल ऑफ एटम्स मीन्स दिस मच नंबर ऑफ एटम्स। सो इसमें यूनिट तो इसका सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला तो इसका नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ काइंड ऑफ नंबर, सो इट्स
representation is m0, l0 and t0. Clear? So now next is what? We have a term which is called as escape velocity, represented by v. So इसके नाम से पता चल रहा है escape velocity मतलब a kind of velocity. तो इसका फॉर्मूला फिर बच्चों क्या बना? m0 l t minus 1. ठीक है? So now next is what? एक हमारे पास और एक टर्म है that is called as critical velocity. So इसका भी नाम से पता चल रहा है critical velocity मतलब is a kind of velocity which is what? m0 l t minus 1. ठीक है बच्चों? So now next is what? Next is coefficient of viscosity. It is represented by eta. ठीक है? Its dimension formula is, आपको बताऊंगा मैं बाद में जाके, ml-1 t-1. ये लीकर्स वाले चैप्टर में आएगा. Its formula is ml-1 t-1. ठीक है? इसको आप याद कर लो क्योंकि इसके फिर फॉर्मूलाज अभी आपको बेसिक लेवल में आपने नहीं किए हुए, तो फिर मैं बाद में चैप्टर में ही आपको करवाऊंगा. ठीक है? और देखते हैं एक दो. काफ़ी सारे वैसे हमने कर लिए, तो इतने फार्मूलाज भी अगर आप याद कर लो तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट. ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. दिस इज अगेन दिस काइंड ऑफ सिंबल विच इज वेरी सिमिलर टू विस्कोसिटी. ठीक है? सो नाउ एफिशिएंसी बच्चों क्या होती है हमारी? आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी. मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी ऊपर है वही नीचे है, तो आपस में इनके डायमेंशंस कट जाएंगे, तो फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा बच्चों? m0 l0 t0. क्लियर? सो नाउ एक दो चीज़ें हमें और आएंगी, जैसे एक टर्म है दैट इज सरफेस टेंशन. क्लियर? सरफेस टेंशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. दिस इज फोर्स बाय लेंथ. दिस इज व्हाट? फोर्स बाय लेंथ. फोर्स बच्चों हमारी क्या है? mlt-2 और लेंथ हमारी भी है l, तो फॉर्मूला क्या बना? ml0 t-2. क्लियर? सो इट्स फॉर्मूला इज ml0 t-2. ठीक है बच्चों? अगर बच्चों आप इतने फार्मूलाज याद कर लो तो आपका ऑलमोस्ट सारा काम चल जाएगा. ठीक है? इसको आप याद कैसे करना है? आप इसको लिख के प्रैक्टिस करो, और जैसे भी कोई फार्मूला है जिसके डायमेंशंस हमें लिखने हैं, देखो कि उसका कोई बेसिक कंपोनेंट्स की फॉर्म में क्या रिलेशन है, तो उसके साथ आपको इजीली डिराइव हो जाएंगे. ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? हाँ जी बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे वी हैव 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल फार्मूलाज. So what is the meaning of quantity? Quantity बच्चों क्या होती है? Which can be measured is called as a physical quantity. ठीक है? So now we have 4 type of physical quantities. Quantities को हम 2 तरह के components में divide करते हैं. One is variable and second is constants. ठीक है? मतलब variables, so जिनकी वैल्यू बच्चों चेंज होती रहती है उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. ठीक है? सो वेरिएबल्स आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल एंड सेकेंड इज डायमेंशनलेस वेरिएबल. Dimensionless variable. Clear? So now, what is the meaning for this? Dimensional variable is that variable whose value is not fixed, means its value is changing, but also it has a dimensional formula. Clear? For example, velocity, mass, acceleration, इन सब में क्या है? वैल्यूज इनकी चेंज होती रहती है, और इनके पास क्या है? डायमेंशन फार्मूला भी है. जैसे इसका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या है? m0 l t-1. क्लियर? व्हाट इज मास? m l0
t0 and what is acceleration m0 L t minus 2. Clear? All these are variable quantities, also they have a dimensional formula. Clear? Now what is the meaning of dimensionless variables? इनमें वैल्यू तो चेंज हो रही है बट इनके पास डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, मीन्स दे हैव नो डायमेंशनल फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल एंगल का बच्चों हमने अभी देखा था, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 L0 एंड t0. क्लियर? एक और फिजिकल क्वांटिटी अभी हमने डिस्कस की है, दैट इज स्ट्रेन, which is change in physical quantity, sorry, change in dimension to the original dimension. तो उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों क्या था हमारे पास, m0 एंड t0. क्लियर? नाउ एफिशिएंसी भी पढ़ा है हमने, it is also a variable. Clear? Its dimension formula is m0 L0 and t0. Clear? So now next is constants. Constant भी बच्चों हमारे पास दो तरह के हैं. फर्स्ट इज dimensional constants and second is dimensionless constant. Dimensionless constants. ठीक है? सिमिलरली इनमें है तो वो कॉन्स्टेंट्स बट डायमेंशन फॉर्मूला है. इनमें क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस हैं और वैसे वो कॉन्स्टेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने जी पढ़ा है, जी की वैल्यू की बच्चों क्या है, दैट इज 9.8. ये वैल्यू तो फिक्स है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन वाला m0 L t minus 2. क्लियर? जैसे हमारे पास कोई और वैल्यू ले लें, हम सपोज हम कैपिटल जी ले लेते हैं, दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है? इसका भी हमने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज व्हाट, m-1 L³ t minus 2. ठीक है? सो कैपिटल जी की वैल्यू भी बच्चों क्या है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू है. सो दीज आर द डायमेंशनल कांस्टेंट्स, मतलब है वो कांस्टेंट बट उनके पास क्या है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला है. ठीक है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, इसमें हमारे पास जैसे ये आ गया पाई की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3.14 रफली अगर हम लिखें, और इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं है, तो ये क्या हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट. ठीक है? जैसे ई की वैल्यू होगी 2.72 के आसपास इसकी वैल्यू होती है. सो दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट. ठीक है? सो हमने क्या पढ़ा, हमारे पास 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं. फर्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल भी है और डायमेंशन फॉर्मूला भी है. डायमेंशन लेस वेरिएबल मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोई डायमेंशंस नहीं है बट वो है वेरिएबल. ठीक है? डायमेंशनल कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट है बट डायमेंशंस हैं. डायमेंशन लेस कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट है बट डायमेंशंस भी नहीं है. ठीक है? तो इस तरह की जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, इनका हमें यूज़ कहाँ पे करना है, तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक है? जेई वगैरह के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं इनमें. सो डायमेंशन फॉर्मूले तो बच्चों हमने कर लिए. अब इसका यूज़ क्या है, इसका हमें 3 तरह का यूज़ है. फर्स्ट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. कोई हमें इक्वेशन दी होगी, उसकी हमें करेक्टनेस चेक करनी है, तो हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से उसकी इक्वेशन चेक कर सकते हैं. ठीक है? सेकेंड इज टू डिराइव द रिलेशंस. फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर रिलेशन क्या है, तो हमें डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से उसको डिराइव कर सकते हैं. थर्ड इज टू कन्वर्ट one system of unit into another. तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी हम इसके साथ सीखेंगे. ठीक है? सो नाउ वी हैव फर्स्ट प्रॉब्लम. चेक the correctness of given equation. हमें एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज mv²/r. फोर्स इज mv²/r. हमें चेक करना कि ये फॉर्मूला सही है, ये गलत है. ठीक है?
तो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखो, अगर हमें L1 प्लस L2 दिया है, ठीक है, मतलब जैसे हम बोलें 1 मीटर प्लस 8 मीटर, तो हम आंसर कितना दे देंगे बच्चों, दैट इज 9 मीटर। ठीक है, अगर हमें कोई बोल दे 1 मीटर प्लस 8 kg, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज व्हाट, अ मास। ठीक है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चों हमने ऐड करना है तो कंडीशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। क्लियर, मतलब क्या है, फॉर एडिशन अगर हमने दो चीज़ों को ऐड करना है तो उसकी कंडीशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी सेम, मतलब सेम टाइप की चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता एक जो डिस्टेंस है और दूसरा मास है, इनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड पॉइंट इज, अगर हमें ये दे दिया L1 इज इक्वल टू L2, फॉर एग्जांपल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हमें सेंस नज़र आ रही है इसकी। यस, 1 मीटर इज अ काइंड ऑफ लेंथ विच इज़ इन मीटर्स एंड दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ लेंथ विच इज़ इन सेंटीमीटर्स। क्लियर, तो ये हमें समझ आ रहा है। ठीक है, अगर हमें कोई ये बोल दे 1 मीटर इज इक्वल टू 5 किलो, तो ये क्या सही होगा, नहीं, ये सही है और ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हमें इक्वल में दी हुई हैं तो उनके डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब एडिशन करनी है तो भी डायमेंशनल फॉर्मूले चीज़ों के सेम होने चाहिए, अगर इक्वेट करना है तो भी उनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होने चाहिए। ठीक है, ये तो यही पॉइंट को हम यूज़ करेंगे इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए। ठीक है, अगर बच्चों एक चीज़ और बता दूं, अगर डिवाइड का कोई लॉजिक है इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं 1 मीटर ओवर 1 kg, डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दिस, सो नाउ इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, फोर्स है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, mv²/r। तो हम पहले क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला अगर बराबर हो गए तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फोर्स, फोर्स के बच्चों क्या है, mlt-2। ठीक है, वेरी सिंपल। सो नाउ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड विच इज mv²/r। सो नाउ व्हाट इज दिस, m बच्चों सिंपल मास ml0 t0। क्लियर, v² मतलब m0 lt-1 डिवाइडेड बाई, नीचे हमें क्या दिया है, डिस्टेंस m0 lt0। तो ये बच्चों क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, m⁻1। ठीक है, यहाँ पे m⁻0, यहाँ पे भी m⁻0, तो बन क्या गया m⁻1। ठीक है, यहाँ पे l⁻0, यहाँ पे 1 है, स्क्वायर दिया तो l² हो जाएगा, नीचे हमारी है 1 पावर, तो ये क्या बन गई बच्चों, l⁻1। ठीक है, यहाँ पे t⁻0, यहाँ पे t⁻-2, यहाँ पे t⁻0, तो हमें बन के गया t⁻-2। ठीक है, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हमारे पास बच्चों क्या बने, mlt-2, और राइट हैंड साइड के बने mlt-2। तो इसका मतलब बराबर है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशन इज क्या बच्चों, वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, t इज इक्वल टू
2 पाई अंडर रूट L बाई जी स्क्वायर। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया फॉर्मूला। सो नाउ व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने हमें क्या दिया, टी हमें टाइम पीरियड बोला है। कई प्रॉब्लम्स में वो दे भी देते हैं और कई में खुद से हमें समझना पड़ता है। ठीक है, सो एल हमारा क्या है, अ काइंड ऑफ लेंथ, और जी हमारा क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, नाउ दिस इज टाइम पीरियड, सो इट्स फॉर्मूला इज m0 l0 t raised power 1। क्लियर? नाउ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड विच इज 2 पाई का बच्चों कोई है नहीं, सो अंडर रूट ऑफ एल इज m0 l t0 बाई जी का बच्चों हमारे पास क्या था, lt माइनस 2। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, सो इसकी स्केयर कर दो। स्केयर का मतलब m0 स्केयर कर दूंगा तो क्या बनेगा, l रेस्ट पावर 2 t रेस्ट पावर माइनस 4। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखते हैं हम। ऊपर भी m0 नीचे भी m0, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ m0। ऊपर l 1 पावर नीचे 2 पावर, तो ये क्या बनेगा, l रेस्ट पावर माइनस 1। और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, t रेस्ट पावर 4, तो ये बन जाएगा t रेस्ट पावर 4। ठीक है, अगर हमने अंडर रूट से इसको निकाले तो ये क्या बनेगा, m0 l माइनस 1/2 t रेस्ट पावर 2। क्लियर? तो ये क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है m0 l0 t1, राइट हैंड साइड क्या है m0 l रेस्ट पर माइनस हाफ t रेस्ट पर 2। तो ये डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसकी बच्चों, राइट हैंड साइड। सो गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। चेक द करेक्टनेस ऑफ v इज अंडर रूट ऑफ p बाई रो। क्लियर? तो हमें ये दिया, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। v उन्होंने क्या बोला हमें, v और वेलोसिटी, t प्रेशर है बच्चों, और रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस। वेलोसिटी का बच्चों क्या होता है हमारे पास, m0 l t माइनस 1। प्रेशर फोर्स बाय एरिया, मैं आपको भी याद नहीं होंगे तो बता देता हूँ। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज व्हाट mlt माइनस 2, एरिया इज l स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट ml माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर? सो व्हाट इज फोर्स, m L minus 1 T minus 2। Clear? So now what is next? Next is density। Density बच्चों क्या है हमारी पास, मास ओवर वॉल्यूम। मास हमारा m, वॉल्यूम L क्यूब, तो इसका क्या बना, m L minus 3 T0। Clear? So this is m L minus 3 T0। Clear बच्चों? So now what we have to do? So इसकी करेक्टनेस हमें चेक करनी है। पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी है। वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m0 l t माइनस 1। नाउ वी विल चेक डायमेंशन ऑल फॉर्मूला ऑफ आवर राइट हैंड साइड। दिस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ, दिस इज प्रेशर, प्रेशर इज व्हाट ml माइनस 1 t माइनस 2, एंड देन रो, दिस इज व्हाट ml माइनस क्यू। क्लियर? ऊपर m की पावर 1 है, नीचे भी 1 है, तो बना क्या हमारे पास बच्चों, m रेस्ट पावर 0। क्लियर? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, तो ऊपर जाके स्क्वायर बन गया। ऊपर -2 है, सो दिस इज -2। इसका अंडर रूट क्या आएगा बच्चों, m0 l स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, -2 है तो -1 आ जाएगा। क्लियर? सो वी हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इट मीन्स दैट so given equation is correct। clear? so एक next example और लेते हैं।
सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हमें एक फंक्शन दे दिया दैट इज mgh². क्लियर? तो वैसे तो हमें पता है ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि हमें पता है ये कौन सी इक्वेशन नजर आ रही है, दिट इज mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुलेशन है. पर एक बार चलो चेक करके देखते हैं इसको. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बच्चों क्या दिया है, एनर्जी इज व्हाट, ml2t-2. क्लियर? सो नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, व्हाट इज दिस, मास दिया है, g दिया है और h² दिया है. सो मास मतलब m, g मतलब LT-2, h² मतलब L². तो ये बन क्या गया, ml3t-2. क्लियर? तो ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, सो इक्वेशन इज इनकरेक्ट. क्लियर बच्चों? तो इस तरह के आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बुक्स में दिए होंगे, तो आप प्रैक्टिस करो. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा. ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो हम देखते हैं. वी हैव गिवन p प्लस a/v², v माइनस b इज इक्वल टू RT. क्लियर? सो नाउ फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, b एंड a/b. तो ये चीज़ हमें पूछी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये. p प्लस a/b², दिस इज v माइनस b इज इक्वल टू RT. ये बच्चों है क्या, बेसिकली दिस इज अ वंडर वर्ल्ड गैस इक्वेशन. क्लियर? तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया टू फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे p प्लस a/b² है, टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंड दिस, ये दोनों का एडिशन हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a/v². मतलब p का बच्चों क्या है, p इज प्रेशर. मैं लिख देता हूं व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस. p क्या है बच्चों, प्रेशर. v क्या है बच्चों, वॉल्यूम. और ये v वॉल्यूम है, और ये हमारे पास गैस कांस्टेंट है. ठीक है, इनकी वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. और t हमें टेम्परेचर दिया है. ठीक है, दिस इज वंडर वर्ल्ड गैस इक्वेशन. सो नाउ व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया विच इज ml-1 t-2. क्लियर? a के डायमेंशन हमें पता करने हैं, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ. नीचे हमारा है v² मतलब v इज व्हाट, वॉल्यूम. वॉल्यूम का है L3, तो ये हमारा L3, इसको पूरा लिख देते हैं m0L3t0⁻². क्लियर? तो बच्चों a के डायमेंशन फॉर्मूला क्या बने, मल्टीप्लाई करते हैं ml-1 t-2 into this is what, this is m0L6 t0. क्लियर? तो क्या बना बच्चों, दिस इज m और ये -1, ये +6, L⁵ t⁻². तो हमें a के फॉर्मूला आ गया विच इज ml5t-2. ठीक है? तो नेक्स्ट इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b. ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन. एडिशन का भी सेम रूल है और सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है. मींस v और b के सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है इफ दे हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला. सो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b. तो इसका क्या है बच्चों, L3 m0 t0. तो फिर b के डायमेंशन फॉर्मूला भी बच्चों क्या बन गया, वॉल्यूम वाला बन गया. क्या है वो, m0L3 t0. ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, उन्होंने पूछा है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a/b. अब a का भी पता चल गया हमें, b का भी पता चल गया. तो व्हाट इज द a/b? सो a/b इज व्हाट, ml⁵ t⁻² डिवाइडेड बाय m0L3 t⁻0. So this is what, ml² t⁻². Clear? So it has the dimensions of energy. तो ml2 t⁻². तो ये किस तरह के डायमेंशन है, एनर्जी वाले डायमेंशन है. ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज E is p minus x² by q into t. Clear?
सो ये हमें फॉर्मूला दिया उन्होंने एंड बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पी क्यू एंड पी क्यू। पहले पी के कैलकुलेट करने हैं, फिर क्यू के, और फिर उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस? सो नाउ इसको फॉर्मूले को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, P माइनस, सॉरी इसमें दिया हमें क्या है बच्चों, E हमें एनर्जी दी है, X डिस्टेंस दिया है और T हमें टाइम दिया है। क्लियर? सो नाउ P माइनस एक्स स्क्र बाई क्यू इंटू टी। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, P और एक्स स्क्र क्या क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब दोनों की सब्ट्रैक्शन का तभी पॉसिबल है इफ दे हैव द सेम डायमेंशंस। इसका मतलब क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ P किसके हैं, डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्र। क्लियर? तो P के डायमेंशंस क्या बने बच्चों, एक्स स्क्र डिस्टेंस, तो दिस इज m0 l स्क्र t0, ठीक है। सो P इज वेरी सिंपल, व्हाट, m0 l स्क्र t0। क्लियर? so this is t0. now next is what, next we have to find out the dimensions of q. so now q को इस साइड ले जाते हैं, this is what p minus x square by energy into t. clear? so p के डायमेंशंस l स्क्वायर वाले, x स्क्वायर के डायमेंशंस भी l स्क्वायर वाले, तो सब्ट्रैक्शन के डायमेंशंस भी बच्चों क्या आएंगे, l स्क्वायर वाले आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दें L1 प्लस L2 1 मीटर प्लस 3 मीटर, सम किया तो डायमेंशंस भी 4 मीटर आएगा, मतलब सेम डायमेंशंस आएंगे। अगर ऐसे कर दो L1 माइनस L2, दिस इज 3 मीटर माइनस 2 मीटर, तो क्या बना 1 मीटर। मतलब एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के डायमेंशंस वही आएंगे जो क्वांटिटीज के हैं। मतलब P माइनस एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस भी कौन से होंगे, m0 l स्क्वायर t0। क्लियर? सो नाउ दिस इज व्हाट, एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट ml2 t माइनस 2। एक और हमारे पास क्या है, टाइम, दिस इज व्हाट m0 l0 t। तो बना क्या बच्चों, ऊपर m0 नीचे m और ये भी m0 है, तो बना गया m रेज़्ड पावर माइनस 1। ऊपर l स्क्वायर नीचे भी l स्क्वायर, यहाँ पे l0 है तो l क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये l0 है, ये हमारा t है, सॉरी ये टाइम 0 है, ये टाइम है, ये टाइम t रेज़्ड पावर माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और ऊपर जाके वो प्लस 1 हो गया। क्लियर? सो इट्स फॉर्मूला इज माइनस 1 l, सॉरी m रेज़्ड पावर माइनस 1 l0 t1। क्लियर? और तीसरा हमें क्या पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी क्यू। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज m माइनस 1 l0 t1। क्लियर? और हमें पूछा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी क्यू, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज p एंड q, दिस इज m0 l2 t0, दिस इज व्हाट m minus 1 l0 t1। क्लियर? तो पी के बच्चों हमारा क्या बना, दिस इज m minus 1 l2 t1। क्लियर? सो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो तो आपको इजीली आने लगेंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इनको करने के लिए, और डायमेंशन फार्मूलाज को आपको याद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू बच्चों।